Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zest and Zeal. The topic we will discuss today is Chapter 10 Trigonometric Identities. Exercise number 10.3 is continue. Today we will discuss question number 16, 17 and 18. Okay, let us start with question number 16. Question number 16 is sin 2 theta upon sin theta minus cos 2 theta upon cos theta is equal to sec theta. We have to prove the left hand side to right hand side. Take left hand side value. What is the left hand side value? Left hand side value is sine 2 theta upon sine theta minus cos 2 theta upon cos theta. We have to take the LCM of these numbers. Sine theta and cos theta. Sine theta, cos theta. Sine theta cancel out. Cos sine 2 theta. Sine to sine cancel out and cos theta. The numerator cos to cos cancel, then cos 2 theta and sin theta is remaining. Okay, then we can take the common value outside. Sin 2 theta, sin theta cos theta, then cos theta. सॉरी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला. हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा cos बीटा then cos अल्फ़ा sin बीटा. अब यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा sin अल्फ़ा, ये cos क्या है cos बीटा. तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है माइनस cos, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 थीटा आ रही है और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास थीटा आ रही है. ठीक है, यहाँ पे cos अल्फ़ा sin बीटा. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपके पास वैल्यू मौजूद है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 2 थीटा और बीटा क्या है हमारे पास थीटा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमरेटर में कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. अल्फ़ा इज़ 2 थीटा एंड बीटा इज़ थीटा. It means that this numerator is equal to this according to the formula. Okay, now sin theta cos theta. 2 theta minus theta is sin theta and then sin theta cos theta. Sin to sin cancel out and 1 upon cos theta. And 1 upon cos theta we know that is 1 upon cos theta is equals to sec theta. We can say that it is equal to sec theta, means it is equals to right hand side. This is proved. Okay, now come to the question number 17. Question number 17 is sin 3 theta upon sin theta minus cos 3 theta upon cos theta is equals to 2. This is again as we have done question number 16. Take left hand side value sin 3 theta upon sin theta minus cos 3 theta upon cos theta. Okay, take LCM of this. Sin theta cos theta, sin to sin cancel out, 9 sin 3 theta and cos theta remaining, then cos to cos cancel out, cos 3 theta sin theta is remaining. It is alpha beta alpha beta. Okay, sin alpha cos beta, cos alpha sin beta. Again applying the formula sin alpha minus beta is equals to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर है 3 थीटा और बीटा हमारे पास क्या है थीटा. ठीक है, 3 थीटा माइनस थीटा.
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा cos theta. Okay, now we know that sin 2 theta is equals to, we have a formula of sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है sin 2 theta का, ठीक है। हम यहाँ पे sin 2 theta की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 2 sin theta cos theta अपॉन sin theta cos theta, ठीक है। cos to cos cancel out, 1 sin to 1 sin cancel out. Answer is 2. It is equals to right hand side. Okay. Now come to the question number 18. Question number 18 is 10 upon alpha plus 5 upon 2 upon 10 minus 5 upon 2 is equals to sin theta plus sin 5 divided by sin theta minus sin 5. Okay. Take right hand side value. In question number 16 and 17 we have taken left hand side value. Now we have taken right hand side value. Sin theta plus sin 5 sin theta minus sin. Okay, what you have to do is you have to apply the formula of sin u प्लस साइन। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, कई बार आप लोगों ने ये फार्मूला पुट किया है। साइन u प्लस वी किसके इक्वल होता है, 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 कॉस u माइनस वी अपॉन 2। अच्छा, साइन u प्लस वी का फार्मूला अप्लाई हो रहा था, इसी तरह साइन u माइनस साइन वी का भी फार्मूला अप्लाई होगा। उसमें साइन यू साइन वी जो है आपके पास 2 साइन कॉस वी के बराबर होता है, और साइन यू साइन माइनस साइन वी जो है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2, उलट है एक दूसरे का, ठीक है। उसमें साइन है फिर कॉस है, इसमें कॉस है फिर साइन है, ठीक। तो अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर पर जब ये फार्मूला साइन थीटा साइन फाई, यानी जो आपके पास u है वो थीटा है, ठीक है, और जो v है वो फाई है। अब आप न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन फाई, आगे बात है 2 साइन u प्लस v, u आपके पास क्या है थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। न्यूमरेटर में आप इस तरीके से पुट कर देंगे, 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपका 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो क्या है आपके पास, साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है, कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन 2। इसी तरह मल्टीप्लाई क्या हो रहा है आपके पास, ये कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। आपको ये बात पता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। अगर हम ये देखेंगे साइन, ये थीटा की वैल्यू कंसीडर कर लें, ठीक है, साइन थीटा अपॉन ये सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा प्लस फाइव अपॉन 2। इसी तरह मल्टीप्लाई में कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है, वी नो दैट। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, थीटा मीन्स
यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वो थीटा माइनस 5/2। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास ये टेंजेंट के इक्वल आ गया, ठीक है, ये तो इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के टेंजेंट। बट ये डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज़ नहीं आ रही, ये हमारे पास कॉट है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो 1/कॉट होता है, 1/कॉट जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे का। तो अगर हम इसको 1/कॉट कंसीडर करेंगे, ठीक है, यानी अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है तो ये इक्वल किसकी हो जाएगी, टेंजेंट थीटा के, यानी टेंजेंट थीटा माइनस 5/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कॉट जो है अगर 1/कॉट हो तो वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो डिनोमिनेटर में नहीं। इसका मतलब ये है कि कॉट को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो टेंजेंट थीटा बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल किसके हो गया है, डिनोमिनेटर की तो वैल्यू यही है आपके पास, टेंजेंट थीटा माइनस 5/2 डिवाइडेड में कॉट रेसिप्रोकल हो गया, यानी 1/कॉट हो गया। तो ये कॉट को हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा माइनस 5/2। यही हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 16, 17 and 18. In the next video we will discuss the last question 19 and 20 of this exercise. Okay, Allah Hafiz. Keep watching for the upcoming videos. Don't forget to like, share and subscribe the video.